And today we'll start with group 13 elements and their physical or periodic properties. The 13th group of periodic table starts with element boron. Next is aluminium, gallium, indium, and helium. In your books, you will find these five elements in group 13. Otherwise, neonium is also there, but properties उसकी अभी books में नहीं है इतनी because recently discovered element is ज़्यादा time नहीं हुआ. So we will discuss properties of these five elements in 13 group. If you want to note down memory aid for learning the elements of group 13, so this is simply एक तो अगर कभी लेदर आइटम्स में एक ब्रांड आता है बैगेट, BAGGIT होता है, बट उससे एक बैगेट हो सकता है BAGIT, इनिशियल्स ऑफ दिस फाइव एलिमेंट्स. अदरवाइज बैंगन, आलू, गाजर इन थाली. So this is also quite simple. You can मतलब एक तरह से याद करने का मेथड है. अदरवाइज इट्स नॉट देयर कि आप वैसे ही नहीं कर सकते. इट्स इजी टू लर्न दीस फाइव एलिमेंट, बट जब बहुत सारी चीजें याद करनी होती तो प्रॉब्लमेटिक होता है. Either you can write by this simple name baguette और बैंगन, आलू, गाजर, ये थ्री वेजिटेबल्स आ गई इन थाली. ठीक है, तो थैलियम से थाली इजी याद रहेगा. इंडियम है गैलियम एंड एल्यूमिनियम बोरॉन. एटॉमिक नंबर बोरॉन 5, एल्यूमिनियम 13, ये 8 के डिफरेंस पे. उसके बाद 18, 31, देन आफ्टर 18 के बाद फिर इसमें एक बार और एक 18 हम लगाए. 18 के साथ नहीं आएगा, 51 है, 30, 49, या दिस इज 32 के डिफरेंस. ठीक है, तो दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. बोर्ड क्लियर क्यों नहीं आ रही? Ma'am, is the board visible clearly? Yes, ma'am. So after writing atomic numbers, the next thing is to write electronic configuration. Here I am writing in terms of noble gases. Helium के बाद 1s2 completed, then 2s2, 2p1. So general electronic configuration of all these elements is ns2, np1. So nth p सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे. Here you will find neon, 3s2, 3p1. Clear? Neon के 10 इलेक्ट्रॉन्स, 13 आगे. गैलियम के केस में आर्गन के 18, उसके बाद 3d10, then 4s2, 4p1. So here this is the next element of 13 group. Next indium के लिए krypton, then 4d10, 5s2, 5p1. ओके, थैलियम में अब एक चीज और आ जाएगी, 4f14, 5d10, 6s2, 6p1. So all these elements you can say they have one electron in nth सबशेल की p ऑर्बिटल में. दो s में है और एक p ऑर्बिटल में. तो all these elements will have one electron in p subshell, 2 electrons in s subshell, outermost shell की अगर हम बात करें तो total 3 valence electrons these elements will have. Next property, if we consider physical properties. Physical properties में बेटा boron is an essential non-metallic element. इसके बाद वाले जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, somewhat एम्फोटेरिक मेटल हम इसको कहते हैं बिकॉज दोनों ही तरह का नेचर थोड़ा बहुत शो करता है. बट अदरवाइज गैलियम से लेके थैलियम तक सारे टिपिकल मेटल्स हैं. तो ऑल दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम. Other elements are metallic in nature. Boron is a non-metal and other elements are metallic. उसमें aluminium जो है थोड़ा सा एम्फोटेरिक मेटल की कैटेगरी में आता है, but otherwise it's a typical metal you can say. Next is atomic radius. Yes,
एटॉमिक रेडियस ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से कंपेयर करें तो साइज बोरॉन का बेरिलियम के बाद छोटा होगा ऑब्वियसली, तो साइज इज लेसर एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। बट व्हेन वी मूव डाउन दिस ग्रुप, तो बोरॉन से लेके गैलियम तक अदरवाइज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिस यू कैन से जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं मिलेगा, और रादर एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम से गैलियम पे थोड़ा सा एटॉमिक साइज डिक्रीज है। 143 पिकोमीटर के अराउंड एल्यूमिनियम है, 137 पिकोमीटर अराउंड इज ऑफ गैलियम। तो गैलियम इज स्मॉलर, यहाँ साइज में एक एक्सेप्शन लिख लो, ये एटॉमिक साइज इन 13 ग्रुप एलिमेंट्स the atomic size increases while moving down the group, but gallium has lower atomic radius than aluminium. Gallium has lower atomic radius than aluminium due to poor shielding effect of 3d electrons. 10 electrons जो गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो, these 3d electrons, you can say they cannot shield the outermost electrons. So due to poor shielding effect of 3d electrons, resulting in increased effective nuclear charge, resulting in increased effective nuclear charge. अब इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं आफ्टर गैलियम, इंडियम, थैलियम में फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया, बट उतना इंक्रीज नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के हेवियर एलिमेंट्स में जितना लार्ज साइज है उतना साइज यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज थैलियम में अब 440 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, तो स्लाइटली हायर है ये एल्यूमिनियम से, थोड़े से ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, तो उतना शार्प इंक्रीज नहीं है इस ग्रुप में बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बिल्कुल इनसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, पी से पहले ही फिलिंग होती है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। देन नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें हार्डनेस, तो सबसे पहले बोरॉन यहाँ पे हार्डेस्ट एलिमेंट है पूरे ग्रुप के अंदर, उसके बाद एल्यूमिनियम, और उसके बाद वाले जो एलिमेंट है गैलियम, सॉफ्ट मेटल के अंदर आते हैं ये तीनों ही, तो यू कैन से है मेटल्स बट उतने हार्डर नहीं है जितने आगे ग्रुप में, और मतलब नेक्स्ट जाओगे तो हार्डनेस इंक्रीज होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, दे आर वेरी हार्ड एज कंपेयर टू दीज, तो बोरॉन इज द हार्डेस्ट इन दीज एलिमेंट्स, फॉलोड बाय, मतलब आप ग्रुप में डाउनवर्ड जाओगे तो सॉफ्ट होते जाएंगे मेटल्स। उसके बाद आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इफ यू कंसीडर melting and boiling point is also highest for boron here, उसके बाद ग्रुप में डाउनवर्ड इंक्रीज है, बट एक मेल्टिंग पॉइंट में कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, बीच बीच में कहीं पे इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, बट बोरॉन हैज एसेंशियली हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम के बॉइलिंग पॉइंट पे डिप आएगा, सबसे कम है इसका पूरे ग्रुप में, दैट इज व्हाई गैलियम इज अ you can say metal which melts on palm, तो melting point is lowest for gallium in this group, ठीक है, बट अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट इसका क्वाइट हाई है। तो आपकी बुक में एक लाइन है कि मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो फॉर गैलियम, दैट इट मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मली समर्स में होता है उस पे ये मेल्ट हो जाता है इजीली, ठीक है, एंड बट बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई फॉर दिस, 2000 के अप्रोक्सीमेट रेंज में है, तो इस वजह से इसको एक तरह से चेंज इन टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है गैलियम, because of its high melting point, high boiling point, sorry, ठीक है। तो ग्रुप में अदरवाइज डाउनवर्ड डिक्रीज होंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नो फिक्स ट्रेंड, कहीं कहीं पे आपको चेंजेस मिल सकते हैं, ऑल्ट्रेशन, एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट आएगा डेंसिटी।
जी, डेंसिटी इज लोएस्ट फॉर बोरॉन। अब डेंसिटी डिपेंड किस पे करती है? मास ओवर वॉल्यूम। तो मास बोरॉन का स्मॉलर है, ग्रुप में सबसे कम है, और हम डाउनवर्ड जब जा रहे हैं तो एटॉमिक मास इज रेगुलरली इंक्रीजिंग, ठीक है, बट वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा, क्योंकि साइज में हमने देखा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज एफ एंड डी ऑर्बिटल्स, साइजेस आर वेरी स्मॉल। तो डेंसिटी तेजी से इंक्रीज हुई है, काफी ज्यादा, मतलब अच्छे से एक रेगुलर इंक्रीज आपको मिलेगा। तो देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन डेंसिटी ड्यू टू greater increase in atomic mass as compared to atomic size. साइज बढ़ रहा है बट उतना शार्प इंक्रीज नहीं है ड्यू टू पुअर शील्डिंग, इसलिए डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी। डेंसिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in atomic mass, due to higher increase in, or you can say greater increase in atomic mass as compared to atomic volume. जितना साइज नहीं बढ़ रहा उससे ज्यादा रेशियो में मास बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई डेंसिटी जो रेशियो है मास ओवर वॉल्यूम इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो वैलेंसीज ये शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उतना ही आपको करना होता है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते, मेन जो क्वेश्चंस है केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ज्यादा होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे सारे टॉपिक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, that day I told you that every group in P block show a most common, you can say group oxidation state हम जिसको कहते हैं, उसके अलावा वो variable oxidation state भी show करते हैं। What will be the most common, or you can say group oxidation state of 13 group element? +3, because the group oxidation state is equal to the number of total वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 + 2 3 है, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस 13 ग्रुप इज +3। तो दिस इज शोन बाय एवरी एलिमेंट, बट एक ट्रेंड जो हमें मिल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जितना डाउनवर्ड जाओगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, एंड इट इज लीस्ट स्टेबल फॉर थैलियम। थैलियम बहुत कम कंपाउंड्स बनाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जितने कंपाउंड्स उसके बनते भी हैं वो मतलब इजीली अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो थैलियम के कंपाउंड +3 स्टेट वाले हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, मतलब खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में डिपेंड किस पे करेगा? IE वैल्यू, ठीक है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है उसी पे डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। तो इफ यू कंसीडर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू 2p1 एक इलेक्ट्रॉन है और ये 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, हम अगर सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को देखते हैं तो दे हैव टू लूज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s, whereas group 13 elements have to lose this electron which is present in p orbital। तो ऑब्वियसली अगर आपको याद हो, हमने पीरियोडिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और s ऑर्बिटल्स आर अदरवाइज पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो बेरिलियम और बोरॉन का एक एक्सेप्शन हमने वहां डिस्कस किया था कि हम ग्रुप 2 से जब ग्रुप 13 पे आते हैं तो साइजेस डिक्रीज हुए। साइज छोटा होने से क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बट एक्चुअल में ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव स्लाइटली लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 2। इसका रीजन क्या है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल से रिमूव करना, which is already stable configuration और more penetrated towards nucleus। अब यहाँ पर 2p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है जो ऑलरेडी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इजीली रिमूव हो जाएगा। मोरओवर p ऑर्बिटल्स जो है उतने पेनिट्रेटेड नहीं है न्यूक्लियस की तरफ, उतने अट्रैक्टेड नहीं है, तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दीज p electrons as compared to these two। तो first ionization enthalpy value is lower than group 2 elements for
13th ग्रुप, बट इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज हाई है। तो क्या होता है अल्टीमेटली तीनों, क्योंकि अब 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिमूव करने, तो इन तीनों IE वैल्यूज का जो सम होता है दैट इज वेरी हाई फॉर बोरॉन। छोटा है एलिमेंट बोरॉन, तो बोरॉन के लिए ये तीनों IE वैल्यूज बहुत हाई हो जाती है सम अप होके। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोरॉन टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म +3 केटायन। तो बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करता है बट कंपाउंड्स आयनिक नहीं। बोरॉन एसेंशियली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। उसके बाद जो है केटायंस बनते हैं, बट स्टिल एल्यूमिनियम केटायन बनाता है, बट एल्यूमिनियम के भी बहुत सारे कंपाउंड कोवेलेंट ही है नेचर में। गैलियम इंडियम के आयनिक कंपाउंड्स क्वाइट पॉपुलर है। थैलियम के +3 स्टेट में कंपाउंड इतने स्टेबल नहीं है, but thallium forms most of the compounds in +1 state due to which effect? Inert pair effect। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 13th group elements, group oxidation state of 13th group elements is +3 due to the presence of 3 electrons in valence shell. The stability of +3 state decreases down the group, and thallium hardly form compounds in +3 state. कुछ compounds हैं known but they are also not stable. Next लिखिए बेटा, the other oxidation state shown by these elements is +1. Other oxidation state shown by these elements is +1 due to inert pair effect. Now here I am not asking you to write the definition of, क्योंकि वो मैंने उस दिन आपको बता दी थी। ठीक है, inert pair effect में NS2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हायर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये +1 स्टेट जो एलिमेंट शो करते हैं उसके एग्जांपल्स देख लो, गैलियम इंडियम एंड थैलियम। गैलियम इंडियम एंड थैलियम, गैलियम इंडियम एंड थैलियम form stable compounds in +1 state। मतलब अब गैलियम और इंडियम तो दोनों ही तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, +3 में भी +1 में भी, बट थैलियम के लिए ज्यादा स्टेबल होंगे +1 वाले। अब यहाँ पे भी एक ट्रेंड आगे ऐड करो, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है ग्रुप में, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो थैलियम के +1 स्टेट के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू +3। सबका रीजन एक ही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट ट्रेंड में उसी में मैं आपको IE वैल्यू के लिए भी साथ ही लिखवा दूंगी, नेचर ऑफ कंपाउंड्स।
Boron essentially forms covalent compounds N+3 state because the sum of all three oxidation states, all three ionization enthalpies, sum of all three ionization enthalpies, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज है is very high. Sum of all three ionization enthalpies of boron is very high due to its small size. Hence, it is difficult for boron to form cation